Hello, friends. This is C. Naresh Lakhani again, and today I'm going to talk about an interesting topic, which is how to improve your English. And for all of us, we have one or another native language, and that is what we speak with our friends, our family, and people around us. Whichever shop I go, whichever school I go, whichever college I go, with my parents, all close my friends, we have been talking in Hindi or some other mother tongue. For me it was Punjabi, but that doesn't help us in improving our English. And I will focus on things how to improve your English. So सबसे पहले, maybe I would like to start with my own experience, my own journey. I was very, very poor in English to that extent that I could not speak even a one single line without mistake and without, any hesitation. So every time I had hesitation and even one line, I used to think about it 10 times. If I had to make a call for some job, unsolicited, seeking job, I used to practice for it 10 minutes. Just if someone would pick a phone call on the other side, it was to that extent. And also I got 33 marks in 10th class English, and I was so happy, not for any other reason, but for the reason I expected that I will fail in English, and that would give bad name to my reputation, that I cannot even read or write in English, and I failed it. And I was from English medium till class 10, though I was from a government school. So the real problem was that I could not understand any anything, all the subjects, science, be it social studies, be it geometry and mathematics, or overall, understanding of the questions in mathematics. Since everything was in English, I failed it terribly. In almost all subjects, I used to barely pass, never more than 40% in aggregate. So that gave me, a thought that why I am struggling so much. Then I realized somewhere around 10th class, I realized that it is all because of my bad English. And if I improve in English, maybe I have chance to do better in the other subjects as well. तो इट इज़ लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. कोई मेरे पास रामबाण नहीं है, कोई फटाफट का मेरे पास रूल नहीं है कि मैं आपको कहूँगा 30 दिन में आप बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे. मेरा फोकस ये होगा कि आपको रोज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, आपको फोकस करना होगा. और बिना फोकस के और बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं होगा. अनलेस आप एक्शन लोगे, यहाँ बात करके चले जाएंगे, यहाँ खत्म हो जाएगी स्टोरी. अनलेस यू टेक एक्शन एंड यू वर्क ऑन इट, nothing is going to improve. So how really you start with it? I tell everyone, you start with the listening. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऑडियो कोई लिसन करो, समथिंग विच इंटरेस्ट यू. वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है. मेरा इंटरेस्ट हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, मैं बीबीसी न्यूज सुनता हूँ. मैं आई वॉज इन यूएस में, वहाँ नेशनल पब्लिक रेडियो सुनता था, जिसमें लोकल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ आती थी. अब यहाँ पे वी हैव एप्लीकेशंस. आई हैव अ बीबीसी एप्लीकेशन on my phone, and I daily listen business, news, health, science, all kind of at least 1 hour or so while my doing exercise or while my doing walks. I try to listen them. तो उससे क्या होता है कि at least I hear correct English, good grammar, good pronunciation, so I know how to speak a word. And also I hear a lot of good words. At times I Google them also. अगर कोई word है जो frequently use हो रहा है and I'm unable to understand it, I Google it. सिंपल सी बात है, गूगल आपके पास है, आपको डिक्शनरी हर समय आप नहीं चाहिए. बट इफ यू कैन हैव डिक्शनरी, दैट इज ऑल्सो फाइन. बाई लैंग्वेज टू स्टार्ट विद, मैं कहूँगा बाई लैंग्वेज जो अपना हिंदी से इंग्लिश वाली वो है उसको सुनो. तो मैं बीबीसी सुनता हूँ, लेकिन बीबीसी सुनने का मतलब यही आप भी बीबीसी सुनो. आप हो सकता है कोई टीवी सीरीज, न्यूज़, एंटरटेनमेंट आपको कुछ लगता है, और कोई ऐसी चीज़ है. पॉडकास्ट हैं, बड़े सारे पॉडकास्ट हैं. अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो बहुत सारे इंग्लिश के यूट्यूब के नॉलेज वाले बहुत सारे मटेरियल इज अवेलेबल. सो ऑब्वियसली यू कैन लर्न. अगेन उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, पूरे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें आपको आएंगी. और कहीं ना कहीं आप उससे नए वर्ड भी सीखोगे, प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे.
उसके बाद जो सेकंड आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आवर नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, मेरी पंजाबी है। So you have to make conscious effort. I started with my brother. I started talking with my brother in English, and we used to go for walks and we used to talk in English. We made this habit, and that gave us a scope of improvement on spoken English. बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आपका सिबलिंग नहीं है, आपका ब्रदर नहीं है, आप कोई फ्रेंड ग्रुप बनाओ जो कोई ना कोई डिस्कशन, कोई ना कोई बातें जो है जो आप कर रहे हो स्कूल की, कॉलेज की, लाइक माइंडेड लोग हो जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी फनी अबाउट इट। आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, 2-3 दोस्त रखो जो रोज प्रैक्टिस करें। कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, और दोस्तों को बोलो कि आप फीडबैक दें कि किस तरह की आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक से हेजिटेट करोगे, आपको बहुत ज़्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी गलतियों पे रोने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अपसेट ऑन योर मिस्टेक, बट येस यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, एंड फॉर दैट फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। इवन मेरी स्पीच में भी कहीं ना कहीं गलतियां होती है। इवन टुडे इन दिस session also you will find some mistake, despite the fact that I have also been voluntarily teaching at NGO for more than 5 years। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत ज़्यादा हाश ना हो। द पर्पस इज एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव करना है। फिर तीसरी चीज़ आती है रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई ना कोई अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई ना कोई जर्नल पढ़ो, ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। अगेन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस एफर्ट, you will have to make conscious efforts on reading newspaper. I have always purchased English newspaper because I believe that that is one good source of improving English। उसमें आपको कोई वर्ड दिखते हैं, immediately आप गूगल कर लो और उसको कहीं लिख लो। कोई बुराई नहीं है, उस वर्ड्स को आप कहीं लिख लो, फिर उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख लो, या कोई सिनोनिम जो है दूसरी जो इंग्लिश लैंग्वेज में कर लो, बट आप उनको लिखो और उन वर्ड्स को पढ़ो। रोज मैं कहूँगा कम से कम 2 या 3 वर्ड जो है आप नए सीखने की कोशिश करो। और उसके बाद है राइटिंग। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी इंग्लिश जो है तभी सीखेंगे जब आप कहीं ना कहीं राइटिंग में इंडल्ज होंगे। आप कोई भी चीज़ जो है ट्रांसलेट करो, कुछ चीज़ें अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, जो भी आपके थॉट्स हैं। एक जर्नल बनाओ, एक डायरी बनाओ। मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें लिखता हूँ, अपना थॉट्स लिखता हूँ। और इवन फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं व्हाट्सएप पे भी लिखता हूँ, मैं आई मेक श्योर दैट आई राइट इनफॉर्मल इंग्लिश। बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बट आई राइट करेक्ट इंग्लिश। तो उसको थोड़ा सा पढ़ो भी। और अगेन कोई फ्रेंड है, कोई आपका सीनियर है जो आपको थोड़ा गाइड कर सकता है थोड़ा बेटर करने में। और जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपने क्या मिस्टेक करते हो, कौन फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हैं। और अगेन कोई बुराई नहीं है, गलतियां हो रही हैं, चलने दो। आपका पर्पस है इम्प्रूवमेंट करना, और इम्प्रूवमेंट डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगी। कोई एक दिन 1 मिनट में कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। ये मेन सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ और भी कई सारे सोर्सेज हैं। आप कोई ना कोई इंग्लिश ग्रामर का सोर्स भी आप लेके चलो। इंग्लिश ग्रामर इन द सेंस, अगर आप देखो आपके कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। अगेन आपको बहुत ज़्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर स्पेशली टेंसेस पे यू कैन फोकस ऑन टेंसेस टू स्टार्ट विद। उसके बाद मॉडल्स होते हैं जैसे विल, शेल, वुड, ये सब चीज़ों का यूज़ करना। फिर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, ये सब चीज़ों पे आप जो है ना, पंक्चुएशन, ये चीज़ों पे थोड़ा सा आप फोकस करने की कोशिश करो। और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आई विल जस्ट क्विकली रिपीट। आप पहले यू रीड इन इंग्लिश, जो भी चीज़ है मटेरियल आप सुनो, लिसनिंग, आप कोई अच्छा प्रोग्राम, टीवी सीरीज, कोई न्यूज़ चैनल जो भी आपको अच्छा लगता है, यू स्टडी इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश, अपने दोस्तों से बात करो, और कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करो। और कुछ वर्ड्स को, जो भी आप नए वर्ड सीख रहे हो, उसको आप किसी नोटबुक में लिखो और उसको दोबारा करो, पढ़ो, और उसको कहीं ना कहीं राइट करने का, ट्राई टू राइट इट, एक्सप्रेस इट समवेयर एल्स। अगर आप नहीं करोगे तो आप सब चीज़ों को फिर दोबारा भूल जाओगे। और अगेन अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसके लिए आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा। आई होप यू एंजॉयड इट।
और नेक्स्ट कुछ सीरीज में कोशिश करूंगा कि कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को लेके जाऊं. मे बी आई स्टार्ट विद टेंसेस. होपफुली you will find it useful. You will subscribe my channel and you will like my video. Thank you. Bye bye. Good day.